تو اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم۔ ایک ساتھ بولے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ محرم۔ اور انگریزی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھو کتنا فرق ہے، جنوری اور محرم کہاں۔ تو یہ انگریزی مہینہ انگریزوں کا رائج کیا ہوا ہے، یہ انگریز لوگوں کا ہے۔ کن لوگوں کا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں انگریزی مہینہ۔ جنوری، فروری، مارچ جو گانتے ہو نا آپ 12 مہینے، تو یہ 12 مہینے، یہ مہینہ جو متعین ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی اسلامی بھی 12 مہینے ہیں، انگریزی بھی 12 مہینے کے نام ہے۔ فرق ہے، بہت فرق ہے جی۔ تو اسلام کے اندر اگر کچھ منانے کا حکم ہوتا کسی دن، تو محرم کے دن بھی ہوتا نا۔ کیا کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ محرم کا دن ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، خوشی میں ڈی جے بجائے؟ کوئی ہے ایسا؟ کسی کو دیکھے ہو؟ کہیں دیکھے ہو ڈی جے بجا رہا، ناچ کر رہا ہے یا مستی کر رہا، ٹینٹ لگا کے بھوج کر رہا؟ کوئی کسی کو دیکھے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ اس بات کا سبق لیجئے، اس چیز کی جانکاری لیجئے کہ 2024 میں میرا کیسا زندگی گزرا ہے، میں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اب 2025 جو آئے گا، مرنے کے میں 1 سال اور نزدیک پہنچ گیا۔ کہاں چلے گیا؟ انسان کا عمر 30 سال ہے، انسان کا عمر 30 سال ہے۔ 30 سال 1 سال اور بڑھ گیا۔ بولا کیا؟ آج ماں کیا کہتی ہے؟ او میرا بیٹا 16 سال ہو گیا، خوشی مناتی ہے۔ او بے وقوف، خوشی کی کیا بات ہے، تیرے بیٹا کا 16 سال نہیں ہوا بلکہ 20 سال کی زندگی میں 16 کو پہنچ گیا۔ کتنا بچا؟ اور 4۔ 20 سال زندگی مرنے والا ہے، 16 سال عمر ہوگی، 3 سال اور بچا، مرنے کے قریب بھاگنے ہوا، 4 نہ بچا۔ تو وہاں پر غم کرے گا یا خوشی منائے گا؟ یہ مسلمانوں کا دماغ الٹا ہو گیا ہے، غیروں کے طریقے میں گھس گیا، اور اسلام کی کتاب قرآن اور حدیث کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان خود اپنے آپ کو دوسرے کے طریقے اختیار کر کے ان کے طریقے میں زندگی گزار رہا، اور کیا کہتا ہے کہ 20 سال ہو گیا۔ 20 سال نہیں ہوا، تمہاری زندگی 30 سال کی تھی، اللہ نے 30 سال دیا ہے تمہیں، تو 20 سال ہو گئے، 10 ہی بچا ہے، 10 سال اور گزارو گے، مر جاؤ گے۔ تو 2024 تھا، 25 آئے گا، 25 آئے گا تو ہم موت کے قریب ہوں گے یا نہیں؟ بولو، قریب ہوں گے نا۔ مثال کے طور پر مان لو میری زندگی 40 سال ہے، 24 سال میرا گزر گیا، کتنا بچا اور 40 سال میں کتنا بچے گا؟ تو بھائی ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، وہاں خوشی نہیں منانا ہے، وہاں غم منانا ہے کہ اللہ جو زندگی گناہوں میں گزر گئی نافرمانی میں، اب 2025 سے یہ سال، نیا سال جو شروع ہوگا یہاں سے، تو پہلا دن اگر ہم اچھے کام کریں گے سال کے پہلا دن میں، تو پورے سال ہی اچھا کام کریں گے، ہوگا نا جی؟ اگر کوئی آدمی صبح اٹھ کے گناہ کر لیتا نا، پورے دن گناہ میں گزرتا ہے، دیکھ لینا۔ اگر صبح اٹھ کے آپ فجر کی نماز پڑھے ہیں تو پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں۔ اگر کوئی اٹھ کے صبح کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلط کام، تو ہر جگہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے پورے دن اس کا کوئی نہ کوئی حادثہ آ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، موبائل کھو جائے گا، پیسے چوری ہو جائے گا، بائک کہیں جھگڑا، کہیں فساد، کہیں گالی بول لے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ کو صبح اٹھ کے راضی کرے گا، اللہ بھی دن میں اس کو خوش رکھے گا۔ آج صبح اٹھتے ہو اللہ کو ناراض کر دیے ہو، تو دن کیسے گزرے گا؟ خوشی میں کہ ناراضگی میں؟ ہاں، تمہیں سکون نہیں ملے گا، پریشان رہو گے۔ تو اسلام کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی نیا سال منائے، بالکل یہ غلط ہے۔ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟
सब बच्चे बोलिए किन लोगों का तरीका है? हमारा इस्लाम मजहब इस बात की इजाजत नहीं देती। अगर इस बात की इजाजत देती शरीयत में तो हम लोगों के पास फसाना है क्या? है ना जी? हम लोग भी कर सकते हैं ना, चाहेंगे तो गौरू गिरा देंगे, भैंस भैंस कर देंगे, है ना? कहा है भाई जो चीज सही नहीं है उसको हम जानबूझ के कैसे कर सकते हैं? जो चीज गलत है उसको हम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे ले लो, खिंजीर खाना क्या है? जल्दी बोलो, खिंजीर खाना क्या है? सब बोले खिंजीर खाना क्या है? हराम है। खाओगे नहीं ना? क्यों? बच्चा से लेके बूढ़ा तक बोलेगा मुसलमानों को खिंजीर खाना हराम है ना? कि अल्लाह ने हराम कर दिया है तो सब जान रहे, उसको नहीं खाते हो। जो चीज गलत है जान रहे हो, फिर क्यों करते हो? ये मुसलमानों को बताओ, ये पैगाम दो हर जगह, अपने घर वालों को बताओ, अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, माँ बाप अपने बच्चों को बताए, सबको बताए, जवानों को बताए। अक्सर जवान लोग अपने मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, रात में शराब अड्डे में जाके शराब पीता है और होटल में बैठ के अय्याशी करता है। बाप सोचता है कि मेरा बेटा कोई काम से गया होगा, पता चला कि बेटा दारू पी करके मर गया, पता चला कि बेटा एक्सीडेंट हो गया, दारू पी के आ रहा था। बाप को खबर होती है तो बाप रोएगा कि मेरा बेटा रात में कहाँ गया, किस काम से, और लाश उसके घर आई तो बाप उस वक्त तक कैसी हालत गुजर रही होगी, बाप का रोएगा ना किसी का जवान बेटा। तो बहुत सारे कारनामा, बहुत सारे हादसा होते हैं। जो गलत तरीके से जिंदगी गुजारेगा उसकी मौत भी बुरी होगी, ये गारंटी है। जो बुरी तरीके से जिंदगी गुजारेगा अल्लाह उसकी मौत भी बुरी तरीके से देता है। अगर अच्छी जिंदगी गुजारोगे, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी चैन सुकून अता करेगा और आखिरत में भी चैन सुकून अता करेगा। ये अल्लाह का वादा है। तुम इस्लाम के बच्ची हो, मुसलमानों के बच्चे हो। इस्लाम तुम्हारा और हमारा तमाम मुसलमानों के मजहब है। इस मजहब को छोड़ के किसी और का अगर मजहब तैयार करोगे, किसी और के तरीके को मान के चलोगे, अंग्रेजों के तरीके को मानोगे दुनिया में, तो अल्लाह कल मैदान हशर में, कल क़ियामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ खड़ा कर देगा। जो आदमी, जिस आदमी का अदा, तरीका, कैरेक्टर अपनाएगा, उसके नक्शे कदम पर चलेगा, तो अल्लाह उसको कल क़ियामत के दिन, जहां पूरी दुनिया का इंसान जमा होंगे, पूरी दुनिया के लोग, मर्द औरत सब नंगे होंगे, मरे हुए लोग कब्रों से सरों से मिट्टी झाड़ करके खड़े हो जाएंगे और एक आग निकलेगी अल्लाह के हुक्म से। वो आग सारे लोगों को दौड़ाती हुई, सारे लोग मैदान हशर में जमा होंगे और वहाँ सबका हिसाब व किताब होगा। सबको अपना किए अमाल के हिसाब देना होगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मैं तो बहुत पैसा वाला था, अल्लाह ताला पैसा हमको कहाँ पकड़ रहे हैं, ऐसा चलेगा? पैसा तैसा चलेगा नहीं। मेरे पास अल्लाह ताला बहुत सोना चांदी, ले लीजिए ना, हमको छोड़ दीजिए, ऐसा होगा? सोना चांदी दे के होगा? अल्लाह के सामने चलेगा? मैं तो बहुत बड़ा मौलाना था, हम तो जानबे करते थे, चलेगा? हम गलत करेंगे मेरी पकड़ होगी बाबू। वो गलत करेगा, उसको जवाब देना है, गलत क्यों किए, गलत क्यों किए उसका जवाब देना होगा। एक गिलास पानी पीने का जवाब इंसान नहीं दे पाएगा। अगर अल्लाह हिसाब लेने में आए तो एक गिलास पानी पीने का आदमी उसकी कीमत नहीं अदा कर पाएगा, फंस जाएगा। तो पानी, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब सांस जो ले रहे हो, हर सेकंड में सांस ले रहे हो, ये अल्लाह की नियामत है। क्या है? जोर से बोले सब, अल्लाह की क्या है ये सब? एक नियामत छीन ले, मान लो एक हाथ कट जाए मेरा, तो दोबारा लौट के आएगा? इस तरह होगा दोबारा? एक हाथ कट गया तो कितना आदमी तड़पता है, बेचैन। काश कि मेरा ये हाथ अगर सही होता तो हम लोटा को अच्छे से पकड़ते दोनों हाथ से, काश के खाना अच्छे से खाते। आज कोई और खिला रहा है, उल्टे हाथ से खा रहा है, चम्मच से खा रहा है, एक पैर नहीं है, देखो चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। तो अल्लाह ने इतनी नियामतें दी है, इसका हिसाब देना होगा सब आदमी को।
कोई डॉक्टर इंजीनियर किसी का कुछ नहीं चलेगा, बाप बेटा बेटी सब वहां देखेगा मगर सबसे दूर भागेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअनुन युगनी वुजूहुन यौम इज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौम इज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। यानी वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई से अलग होगा, बाप बेटी से जुदा, बेटी बाप से भागेगी बाप को देख करके, और बीवी शोहर को देख के अलग थलग हो जाएगी, शोहर बीवी को देख के अलग हो जाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों को देख के अलग भागेगा, कोई किसी का उस दिन पूछने वाला नहीं होगा। यानी माँ बेटी का रिश्ता दुनिया तक है, मरने के बाद वो जब मैदान हशर कायम होगी सब लोग होंगे, बाप बेटी को भी देखेगा, बेटी बाप की तरफ देखेगी, तो रिश्तेदार रिश्तेदार को पहचानेंगे, ये फला है, ये फला साहब है, ये मुखिया जी, ये इंजीनियर साहब, ये डॉक्टर साहब, मगर वहाँ सबको अपनी अपनी हिसाब देना पड़ रहा है, कोई एक नेकी नहीं देगा। अल्लाह ताला कहेगा जाओ तुम्हारा एक नेकी घट रहा, जन्नत जाओगे, एक नेकी ले आओ। चुनाव बेटा के पास जाएगा, कहेगा बेटा, बाप कहेगा कि मेरा एक नेकी घट रहा है, नहीं तो हम जहन्नम जाएंगे, अल्लाह के वास्ते एक नेकी दे दो, जन्नत जाएंगे, एक नेकी घट रही है जन्नत जाने के लिए। बेटा कहेगा नहीं नहीं बस हम नहीं दे सकते, मेरे पास मत आइए, दुनिया में बाप थे, यहाँ तो हमारा क्या होगा, अपना ठिकाना नहीं है, हम एक नेकी नहीं दे सकते। फिर बाप जाएगा बेटी के पास कि बेटी दुनिया में बहुत कुछ दिए तुम्हें, शादी करवा दिए, अच्छे घर में बहुत सारा सामान दिए, अच्छे कपड़े दिए, तुम्हारे लिए क्या नहीं किए थे, यहाँ जहन्नम जाएंगे, बेटी एक नेकी घट रही है, खुदा के वास्ते एक नेकी दे दो। बेटी कहेगी मेरे अब्बा अब दुनिया में अब्बा थे, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, मैं एक नेकी नहीं दे सकती, मेरे पास ना आइए। फिर जाएगा बीवी के पास, बीवी भी कहेगी दुनिया में शोहर थे, मैं एक नेकी नहीं दे सकती हूँ, बस मेरा क्या बनेगा, मेरे पास मत आइए। जिसके भी पास जाएगा कोई एक नेकी नहीं देगा, 500 साल की टाइम मिलेगा उसको। कितना? अल्लाह कहेगा जाओ तुम्हें 500 साल की मोहलत दे रहा हूँ, एक नेकी कहीं से लेके आ जाओ, तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। चुनांचे कोई आदमी एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। जब दुनिया में बाप बेटा का नहीं होता है, वह कैसे हो जाएगा? शादी हुई 2 दिन 1 महीना अच्छा रहा, झगड़ा हो गई, अलग हो गया बाप से, देख पैसा कमा रहा, बाप को धमकी दे रहा, ज्यादा बोलोगे बंदूक से बुढ़ा कहेगा गोली मार दूंगा। हाँ, अलग बीवी के बाद में माँ बाप को छोड़ा, और 1 महीना नहीं गुजरा शादी का कि बेटा पुतो अलग, माँ बाप बेचारा बूढ़ा अलग, और रो रहा है। और उस बेचारा का, वो बेचारा सोचता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, शादी करा देंगे, पुतो आ जाएगी, सब मिल के रहेंगे, कुछ बात हुई, बात से ही अलग हो गया बीवी के बात में। तो दुनिया में नहीं होता है कोई किसी का, जब तक आप सही है आपको सब चारा, आपके पास पैसा है सब आएगा, खिलाओ खर्चा करो, देखो कितना बनेगा, ओ बहुत अच्छा आदमी है, ये खाना खिलाते दावत करते बहुत सखी आदमी है। आप बीमार हो गए बिस्तर में पड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आदमी सही था तो सब उससे मिलते थे, मोहब्बत करते थे, वो आज बीमार है बिस्तर में 2 साल से, उससे कोई मिलने नहीं आ रहा। क्यों? कि जब तक वो ठीक था खर्च किया तो उससे सब मिल रहे, वही आदमी बीमार है कोई पूछने वाला नहीं है। देखो दुनिया में जब साथ छोड़ रहा है वह कैसे साथ होगा, वह सब आदमी को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा, कोई आदमी नहीं बचेगा, कोई आदमी नहीं बचेगा। और इस्लाम के खिलाफ आप जिंदगी गुजारेंगे जानबूझ के तो आपका हर 1 मिनट का हिसाब होगा, तो गलत तरीके से जिंदगी जो गुजार रहे हो उसका जवाब दे पाओगे, फंस जाओगे। क्यों ना हम और आप अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने का फैसला आज ही से करें, है ना? करेंगे सब बच्चे कि कोई गलत काम हम लोगों से ना हो। नया साल ये कुछ नहीं होता है, नया साल जो इस्लाम में है वो असल क्या है बता दिया ना, ये अंग्रेजों का तरीका है।
अभी आपको मैंने बताया अंग्रेज का तरीका अगर अपनाओगे तो अंग्रेजों के लाइन में खड़ा करेगा अल्लाह। कहाँ खड़ा करेगा? जब पूरी मैदान हशर में लोग होंगे तो अल्लाह देख लेगा, पहचान लेगा ये लोग अंग्रेजों का तरीका मानता था, चल तुम उसके लाइन में खड़ा हो, ये नबी के तरीकों को मानते हैं, इधर आ जाओ। जब वहां अल्लाह अगर छांट के अलग कर दे वहां फिर क्या बनेगा बाबू? कहाँ जाएगा? पता है कहाँ जाएगा? उसका फैसला क्या होगा? डायरेक्ट जहन्नम होगा। तो बच्चे ध्यान दीजिए, आपको कोई गलत काम नहीं करना है। जिस तरह आज का दिन गुजार रहे हो वैसे कल भी गुजार लेना है। कोई खुराफाती गलत काम करोगे याद रखो ये जमीन आसमान गवाह होगा, हम भी गवाह होंगे। कल अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। हम जो बता रहे हैं अगर नहीं माने कल कुछ गलत किए तो जमीन गवाह होगी कि मैं यहाँ तुमको बताया था। कल फंसोगे, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ये आसमान कैमरा है, ये जमीन भी अखबार है। अखबार में जिस तरह खबर छप के आती है इसी तरह ये जमीन अखबार है, आसमान कैमरा है और हम गवाह, फरिश्ते गवाह होंगे। कल फंसोगे। आज जो बताए हैं अगर इस पर अमल नहीं किए, इसके खिलाफ किए तो कल मैदान हशर में तुम्हें जलील होना पड़ेगा, रुसवा होना पड़ेगा और तुम्हारी सर नीचे हो जाएगा, तुम्हारा सर नीचे झुक जाएगा। अल्लाह के सामने सर नहीं उठा पाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जमीन अगर गवाही दे दे तो कौन बच सकता है? जमीन के मुंह में बोली नहीं है, ये जमीन सच्चाई को उगलेगी और जमीन बोलेगी या अल्लाह सच है। ये आदमी ने, ये हाफिज साहब ने बताया था कि ये गलत है मगर इन लोगों ने नहीं माना तो मैं भी गवाह हूँगा, फरिश्ते गवाह होंगे कंधे में और अल्लाह भी देख रहे, सुन रहे मेरी बातों को, फरिश्ते भी सुन रहे, जमीन भी गवाह बनेगी, आसमान भी गवाह, हर एक चीज गवाह होगा। कल के दिन में अगर तुम लोग आज से अहद नहीं किए, आज की बात को नहीं माने तो कल पछताओगे। पछताने के अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। रोएगा, खून के आंसू रोएगा, रोते रोते आंसू खत्म होंगे, खून निकलेगा आंसू की जगह में। इंसान वहाँ रोएगा ना, जब रोते रोते आंसू जब खत्म हो जाएगा जिस्म का खून आंख से निकलेगा, रोएगा और पसीने में इतने होंगे, पसीने में डूब जाएगा आदमी। जिसका गुनाह जैसा होगा वो वैसे इतना पसीने में होगा, जिस आदमी का अमाल जैसा होगा उसका पसीना वैसे होगा। किसी आदमी का पसीना पैर तक होगा, यहाँ टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का नाभ तक, किसी का कमर तक, किसी का यहाँ तक आ जाएगा। किस वजह से? गुनाहों की वजह से। अगर मेरा अमाल अच्छा है तो पसीना कम होगा, अच्छा अमाल है, गुनाह कम है, नेकी ज्यादा है तो हमारा पसीना थोड़ा होगा। अगर गुनाह इतना तक कर लिए यहाँ तक पसीना होगा, इसी में तैरते रहेंगे, अपने पसीने में अपने डूबेगा और सूरज सर से करीब होगा, ऊपर सर से थोड़ी दूर में सूरज होगा, उसकी गर्मी से पसीना होगा। सोचेगा इंसान कि मैं हिसाब दूंगा, क्या पता पाल होगा कि नहीं, अल्लाह के सामने अभी जाना है। कितना डरेगा आदमी, बाप। अल्लाह के सामने खड़ा होना है हर आदमी को। दुनिया में जो किया तो करके चले गया, वहाँ जो पूरी दुनिया के इंसान आदम से लेके मोहम्मद तक जितने नबी आए सब के सब मौजूद होंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को देखे मेरा अब्बा है पहला नबी, नूह अलैहिस्सलाम को देखेंगे 950 साल तक दीन की दावत देते रहे। कितने? 950 साल लोगों को समझाते रहे। कितनी उम्र होती होगी? ज़करिया अलैहिस्सलाम होंगे, यहया अलैहिस्सलाम होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम होंगे, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थे दुनिया में। मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। वो सारे नबी देखेंगे, हसन हुसैन, हजरत फातिमा नबी की बीवियां, सहाबा इकराम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। हजरत अली नबी के दामाद है और हजरत अली को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि हजरत अली के बारे में आता है। हजरत अली एक पैर घोड़ा पे रखते थे, एक पैर घोड़ा के जीन पर, घोड़े के जीन पर ऊपर एक पैर रखे,
دوسرا پیر رکھنے سے پہلے حضرت علی 60,000 قرآن پڑھ لیتے تھے. کتنا؟ حضرت علی کتنا قرآن پڑھ لیتے تھے؟ 60,000 قرآن کریم مکمل کر دیتے. یہ اللہ نے کتنا علم دیا ہوگا سوچو کہ ایک پیر گھوڑا کے اوپر رکھے ہے, دوسرا پیر رکھنے سے پہلے 60,000 قرآن کریم مکمل. یہ حضرت علی کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ حضرت علی کے بیٹا حضرت حسین جو کربلا کے میدان میں نماز میں شہید ہو گئے, کیوں؟ یہ دین کے خاطر شہید ہو گئے. اور جنت میں وہی حسن حسین مردوں کے سردار ہوں گے, اور حضرت فاطمہ نبی کی چھوٹی بیٹی ہے, حسن حسین نبی کے ناتی ہے, حضرت علی داماد ہے, مگر مقام کیا ملا کہ گردنیں کٹائی دین کے خاطر, کربلا میں شہید ہوئے حسین. اور جنت میں مردوں کے سردار ہوں گے. جنت میں گھسنے کے بعد جتنے مرد ہوں گے سب کا سردار حضرت حسین, حسن حسین. اور حضرت فاطمہ عورتوں کی سردار. ادھر بیٹا ہے, ادھر ماں ہے, اور باپ کا علم کتنا وہ سن ہی لیے. حضرت ابو بکر نبی صاحب کے خاص ساتھی ہے, یار دوست ہے. حضرت ابو بکر کو اللہ نے خود سلام کیا تھا, اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا, ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو. آج کسی کو اللہ نے سلام کیا؟ کیا نیکی کیے ہوں گے, کیا اعمال کیے ہوں گے. اللہ خوش ہو گئے دنیا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ حضرت ابو بکر سے اللہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ سے اللہ کیا ہو گئے؟ راضی. حسن حسین رضی اللہ عنہما اللہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. جتنے صحابی ہیں, جتنے لوگوں سے اللہ دنیا میں راضی ہوئے ہیں, ان کو جنت کی ٹکٹ دنیا میں مل گئی. ان کے نام میں رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پتا چلا اللہ ان لوگوں سے دنیا میں ہی راضی ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں بن گیا ہے؟ ڈائریکٹ جنت بن گیا ہے. اس لیے تم لوگ عہد کرو اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے خدا کے واسطے کوئی کچھ نہیں کرنا. کل بولو سب عہد کرتے ہو, وعدہ کرتے ہو کہ ہم گواہ بناتے آپ کو, زمین آسمان کو, کہ ہم بچے آپ کے سامنے بول رہے کوئی غلط کام نہیں کریں گے کل. بولو سب, بولو سب بچے بولے. اپنے بھائیوں بہنوں کو بتاؤ کہ جو کرے کرنے دو, ہمیں مگر نہیں جانا ہے, نہیں کرنا ہے. جس طرح آج گزار رہے آپ وقت, اسی طرح کل بھی گزار لیں گے, مگر جان بوجھ کے کہ آج پہلا تاریخ ہے گوشت لاؤ پولا بناؤ, یہ غلط ہو جائے گا. آپ آج کیوں نہیں کھائے کل کھاؤ گے؟ آج کیوں نہیں کھائے کل کے دن جان بوجھ کے کرو گے. اسی چیز کو کہتے ہیں بدعت. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو جان بوجھ کے کسی دن کرنا وہ بدعت ہے. سمجھ رہے ہو؟ بدعت یعنی دن متعین کر لینا کہ نا 1 تاریخ کو مرغا ذبح کریں گے, مرغا ذبح کریں گے, پلاؤ بنائیں گے. یہ جان بوجھ کے جو کرو گے یہی ہوگا بدعت. اور گمراہی, جو گمراہی میں گیا وہ شیطان کا ساتھی ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں جائے گا اللہ ہی جانتا, پھنسے گا. سب بچے اس پر عمل کریں گے, کرو گے عمل, عمل کرو گے, سب بچے عمل کریں.